বাড়ি কমপক্ষে 100 করার এরাদা নিয়েছে এরা। উত্তর দিনাজপুরে জমিয়তের কর্মী বৈঠক, 1 লক্ষ সদস্য তৈরির অঙ্গীকার। উত্তর দিনাজপুর জেলার মানযোগ জামিয়া কাসিমুল উলুম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গত 11ই আগস্ট সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক কারি শামসুদ্দিন আহমেদ কাসেমির নেতৃত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষত বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের বিদেশি আখ্যা দিয়ে অমানবিক নির্যাতন ও জোরপূর্বক পুশব্যাক করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচনা হয়। এই ধরনের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন নির্বাচন কমিশনের SIR ইস্যু নিয়েও আলোচনা করা হয়। রাজ্য জমিয়তের অফিস সেক্রেটারি ডক্টর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বৈঠকে জানান, সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করতে হলে জেলা ও ব্লক পর্যায়ে অধিক সংখ্যক প্রাথমিক সদস্য তৈরি ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। তিনি কারি শামসুদ্দিন আহমদ কাসেমি ও কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানির নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ব্যাপক সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালানোর আহ্বান জানান। বৈঠকে উপস্থিত সকলে আন্তরিকতার সঙ্গে একমত পোষণ করে এই জেলায় 1 লাখ প্রাথমিক সদস্য তৈরির অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য একযোগে কাজ করার সংকল্প নেন তারা। বৈঠকে জেলা জমিয়তের সভাপতি মুফতি জাফর মুবিন, সহসভাপতি হাফেজ হামিদ জামিল, সহ সম্পাদক মুফতি আব্দুল করিম, জেলা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মুফতি আব্দুল হামিদ, ব্লক সভাপতি মাওলানা জিয়াউদ্দিন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মী বৈঠককে ঘিরে জেলার জমিয়ত কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার হয়েছে। আলাদা করাচ্ছি না মসজিদ, যেহেতু আমরা এরাদা করি ইনশাআল্লাহ আমরা প্রত্যেকেই 1000 মেম্বার সাদিক আমার অধীনে বা আমার প্রচেষ্টা আমি 1000 মেম্বার সাদিক। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা বাড়ানো এবং আমাদের মাকামি জমিয়ত অর্থাৎ ইউনিট সংখ্যা বাড়ানো, যাতে করে আমরা কেন্দ্রীয় স্তরে হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানির হাতকে এবং রাজ্য স্তরে জেনারেল সেক্রেটারি কারি শামসুদ্দিন আহমদের হাতকে মজবুত করতে পারি, আরও ওনাদের আওয়াজকে আরও শক্তিশালী করতে পারি। সেজন্য আমাদের উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা বাড়ানো এবং ইউনিট সংখ্যা বাড়ানো। এই উদ্দেশ্যেই আজকের এই আলোচনা সভা। সিদ্ধান্ত এখানে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা সকলেই গ্রহণ করেছেন এবং আগামীতে তারা প্রচেষ্টা চালাবেন সদস্য সংখ্যা বাড়াবেন, ইউনিটের সংখ্যা বাড়াবেন। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে। এখন পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুর জেলা কতটা আপনাদের মেম্বার আরাধনা ছিল? আমাদের গত টার্মে ছিল 39,975 মতো প্রাথমিক সদস্য ছিল এবং 12টা ইউনিট ছিল, 12টা মকামি জমিয়ত ছিল আর কি। সেটা আমরা বাড়ি কমপক্ষে 100 করার এরাদা নিয়েছে এরা, প্রস্তাব রেখেছে, এরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কমপক্ষে 100 ইউনিট এবং 1 লক্ষ সদস্য আগামীতে যাতে হয়। আমাদের প্রতি 2 বছর টার্মে এটা নতুন করে রিনিউ হয়, নতুন করে সদস্য হতে হয়, নতুন সদস্য সংগ্রহ করা হয়, নতুন করেই সবকিছু হয়। आज जमीयत उलमा उत्तर दिनाजपुर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब कारी शमसुद्दीन साहब की जमीयत की मीटिंग थी। इसमें जमीयत उलमा के अरकान किस तरह फील्ड में काम करेंगे, किस अंदाज से काम करना है और जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात में मुसलमानों की किस तरह रहनुमाई करनी है, इस सिलसिले में मेहमान मोहतरम ने बातें रखी। और आइंदा जमीयत के जो इब्तिदाई अरकान हैं उसमें इजाफ़ा करना है। इस वक्त 39,975 हमारे मेंबरान हैं। मेहमान मोहतरम ने हमें ये कहा है कि आइंदा आपको 1 लाख मेंबर साजी करनी है और 1200 मकामी यूनिट बनानी है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 12 यूनिट जी ज़िला उत्तर दिनाजपुर में 12 मकामी यूनिट है और इब्तिदाई मेंबरान 39,975 है। तो आइंदा इंशाअल्लाह हमें 1200 यूनिट बनानी है और 1 लाख मेंबर बनाने हैं। इसके लिए
आए हुए सारे उलमा किराम ने इरादा किया है और हम मुकम्मल कोशिश करेंगे और मेहनत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ये तादाद हमारी पूरी होगी और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र मुबीन अल-कासिम। जी, आज की मीटिंग इस बात पर थी कि हमारी जमीयत क्योंकि सदियों से काम कर रही है और हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ ने कब्ज़ा कर लिया था और मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को, बल्कि हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बना लिया था, तो इसमें क्योंकि जमीयत इसको आज़ाद कराने में पेश रही है और जमीयत ही की क़यादत में जितने भी लोग नेता बने, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, ये लोग जमीयत की क़यादत ही में गांधी और सुभाष चंद्र बोस बने। तो हम चाहते हैं कि आज जो उस मुल्क में जो सेकुलर मुल्क है और हिंदू मुस्लिम सदियों से हम लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं, उस मुल्क में बाज़ लोग फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और दो नज़रियात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मीटिंग का मकसद ये है कि हम उस नज़रियात को फिर ख़त्म करें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके भाईचारगी के साथ हिंदुस्तान में चलें और जमीयत जिस तरह उस वक्त अंग्रेज़ को भगाने में काम किया था, आज जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कैसे ख़त्म कर सकें, भाईचारगी फिर दोबारा कैसे पैदा हो, इसकी फ़िक्र में हम लोग बैठे थे। और हमारी जमीयत, क्योंकि उत्तर दिनाजपुर में जमीयत उलमा हिंद की जमीयत उलमा उत्तर दिनाजपुर में क्योंकि मेंबर साजी बड़ी, मतलब ये तंजीम बहुत गफलत से काम कर रही है, तो आज डॉक्टर शफीकुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहू आकर के हम लोगों को जोश दिलाए और रास्ता बताए कि हर ज़िले में मेंबर साजी लाखों के करीब हैं, आपके यहाँ कम है, तो आपको लाखों के करीब तकरीबन मेंबर साजी करनी है और जमीयत को फ़ाल बना करके इलाके में मजबूती के साथ काम करना है, गरीबों का हमदर्द बनना है, मजलूमों का हमदर्द बनना है और हिंदू मुस्लिम एक जिहती को बरकरार रखने की कोशिश करना है। इसी सिलसिले में आज मीटिंग हुई और मैं क्योंकि ब्लॉक का खादिम हूँ, ब्लॉक सदर हूँ, सदर के हैसियत से काम कर रहा हूँ और ग्वालपोखर ब्लॉक का मैं सदर हूँ और पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं नायब सेक्रेटरी हूँ। इस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। हमारे साथ हाँ, मुफ्ती अब्दुल करीम कासिम। ये आप भी जानते हैं कि ये मुल्क अंग्रेज़ के कब्ज़े में था और हम सब ने मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, सब ने मिलकर इसको आज़ाद किया और उसके बाद इसका कानून सेकुलर बना। इसका मकसद ये था कि तमाम हिंदुस्तानी आपस में भाईचारगी के साथ रहें और सबको उनके हुकूक मिले और सबको मजहबी आज़ादी मिले। लेकिन कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि इसमें काफ़ी दरार है और कुछ जो अनासिर हैं वो इस भाईचारगी को देखना पसंद नहीं करते हैं। जमीयत उलमा हिंद का हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार रहा है और बहुत से ऐसे नेता कि जिनका नाम आज हम लेते हैं, अगर देखा जाए तो ख़ुद जमीयत ने उन्हें आगे बढ़ाया है और उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया है। तो जमीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी फ़ाल थी और पहले भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और ख़ास तौर पर जो मज़लूम हैं और परेशान हाल हैं, जिन्हें यूं ही गलत मुक़द्दमात में फंसाया गया, उनकी रिहाई के लिए और दूसरे काम भी बहुत ज़्यादा किया। अब हम इस मकसद से भी बैठे हैं कि जमीयत के अरकान की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि जमीयत को मज़ीद ताकत मिले, मज़ीद क़ुव्वत मिले और हम मुल्क की तरक्की में, भाईचारे में और इसके सेकुलरिज़म को बचाने में एक नुमाया और मौसर किरदार अदा कर सकें। यही आज की इस मजलिस का मकसद है। सर, क्या जमीयत उलमा में सिर्फ क्या उलमा या आइमा ही शामिल होते हैं या फिर दूसरे लोग? नहीं, ये वो तंजीम है कि जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, हर बालिग, मर्द औरत, आलिम हो, हाफिज़ हो, मास्टर हो, यहाँ तक कि जो अनपढ़ भी है, आम आदमी भी है, वो लोग भी इसकी रुकनियत हासिल करते हैं और वो भी इसमें शामिल है ताकि इसकी अच्छी ताकत हो और हम कोई अच्छा किरदार अदा कर सकें। और इसमें मसलक की भी कोई क़ैद नहीं है कि देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, अहले हदीस है, इसकी कोई क़ैद नहीं है। तमाम लोग इसकी रुकनियत हासिल कर सकते हैं।